So students, namaste to everyone. So far we have discussed about the chapter 2, which is about the computer languages, and I am hoping that you all have understood the computer languages in a much descriptive manner. We have discussed the high level languages, low level languages, and we have came to know about the modern high level languages also, in which we have covered the Pascal, Fortran, C, C++, Java, Python, Prologues, and etc. So now I am hoping that you are able to solve your book exercises and question answer. But for your reference, I am just making this video for your reference so you can understand the question answers with much more detail. Okay, so now in this video we will cover the book exercises and the question answers. So the very first question is here: take the correct answers and fill in the blanks. So I am not filling in the blanks, I am just only taking the correct answer. Now it's your task to just fill in the blanks the correct answer. So the very first is dash is an example of fifth generation language. So among of them, which is the fifth generation language? Is the Fortran? Is the C++? No. Prolog. Prolog में हमने क्या पढ़ा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन प्रोसेसिंग के लिए काम ली जाती है. सो इसीलिए प्रोलॉग को क्या बोला जाता है? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. मशीन लेवल लैंग्वेजेस हैं? नहीं. ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जो लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं. Undash language use mnemonics codes to develop program. बिल्कुल. mnemonics क्या होता है? Machine language? No. Assembly language? Yes. Now the next question is fill in the blanks. Okay, so the first is basic and Fortran are example of dash languages. Basic और Fortran किस टाइप के languages हैं? High level languages हैं. And dash converts an assembly language program into machine language. ठीक है, ऐसा कौन सा टूल होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है. तो असेंबली से असेंबलर बनेगा, तो हमारा आंसर क्या है? असेंबलर. It is very difficult for a programmer to develop a program using dash language. ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिससे कि प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम लिखने में दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल मशीन लैंग्वेज, क्योंकि वो 0110 से मिलकर बनता है. Dash is an example of high level language. High level language का example क्या है? Pascal. ठीक है. Now the next question is write T for true or F for false. हमें statements दी गई हैं, उसके true और false हमें solve करने हैं. Computers cannot understand the user's language. क्या हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझ पाता कंप्यूटर? बिल्कुल नहीं समझ पाता, वो तो केवल मशीन कोड को ही समझता है. मशीन लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू राइट. क्या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो है उनको राइट करना, उनको लिखना हार्ड होता है? बिल्कुल हार्ड होता है ना. तो इसलिए टी. हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. क्या हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लिखते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ लेता है? नहीं, हमें उसके लिए ट्रांसलेटर यूज करने पड़ते हैं, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स यूज करने पड़ते हैं. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की. Assembler is used to convert a high level language program to machine code. क्या assembler जो है वो high level language को machine code में बदलता है? नहीं, वो केवल assembly language को ही convert करता है. तो that mean it is a false statement. Machine language is the only language that is directly understood by the computer. हाँ बिल्कुल, मशीन लैंग्वेज ही तो है वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, किसी भी कन्वर्टर की, किसी भी ट्रांसलेटर की नीड नहीं पड़ती है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इज टी. नाउ डी क्वेश्चन इज आंसर इन शॉर्ट. तो हमें शॉर्ट आंसर्स दे रहे हैं. व्हाट इज अ लो लेवल लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. यानी लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर बाइनरी डिजिट्स? बाइनरी डिजिट्स क्या है? अ कंप्यूटर यूजेस टू डिजिट्स. हम सभी को पता है कंप्यूटर दो ही डिजिट्स का यूज करता है मेनली, वो है वंस एंड जीरोस. These two digits are called binary digits. इन्हीं दो digits को ही तो हम बोलते हैं binary digits. तो 1 means on and 0 means off. Which generation of programming languages uses a visual or graphical interface? Graphical यानी ग्राफ्स वगैरह बनाना, डिजाइनिंग करना, एनिमेशंस करना, ये किसमें आता है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज आखिर है क्या? सो दिस लैंग्वेज यूज्ड वर्ड्स और नेम्स इन इंग्लिश फॉर्म, यानी असेंबली लैंग्वेज में हम इंग्लिश फॉर्म और इंग्लिश सेंटेंसेस या इंग्लिश सिंबल्स का यूज करते हैं, तो दिस आर आल्सो नोन एज नेमोनिक्स। ठीक है, राइट वन डिसएडवांटेज, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसएडवांटेज, यानी हमें नुकसान बताना है मशीन लैंग्वेजेस के कि वो क्या डिसएडवांटेज देता है। सो दिस लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस, ये किसका क्या है, डिफिकल्ट होता है हमारे लिए समझना कि आखिर कोड्स लिखा क्या है, तो उसके लिए हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है मशीन लैंग्वेज का। अब हमारा नेक्स्ट है सेगमेंट आंसर इन डिटेल, हमें डिटेलिंग आंसर देनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस, यानी अंतर क्या है बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो हमें कुछ अंतर बताने, कुछ डिफरेंशिएशंस बताने हैं। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज आर एज फॉलोज। हमें एक टेबल बनानी है, एक तरफ मैंने लिखा है लो लेवल लैंग्वेज, एक तरफ मैंने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, डिफिकल्ट टू राइट, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या यूज करते हैं, मशीन कोड्स। हाई लेवल लैंग्वेज में हमें राइटिंग में इजियर होता है क्योंकि हम हमने इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के सिंबल्स ही यूज करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो डिफिकल्ट होता है डिबग करना, और हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा इजी होता है। लो लेवल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है क्योंकि उसे कन्वर्टर की जरूरत नहीं होती, कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती, जबकि HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। So this is how we have completed our question 1. Now it is the question 2. What do you understand by high level languages? Give 2 example, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस से आप क्या समझते हैं, आपको कोई 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और उसके बाद हमें एग्जांपल देना है। तो चलिए देखते हैं। A language that is very similar to English language, एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज से, एंड इट इज सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड दीस लैंग्वेजेस आर कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, यानी 3GL भी हम इन्हें बोलते हैं। अब हमें क्या बताना है, इनके एग्जांपल्स बताने हैं। तो एग्जांपल क्या हो गए, फॉर्ट्रेन, कोबोल, सी, C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। नाउ द थर्ड इज व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज क्या है? आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को समझता है, लेकिन जो हम कोड लिखते हैं वो तो इंग्लिश में लिखे होते हैं, तो वो कैसे समझेगा, तो वो समझेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की हेल्प से, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से। सो टू मेक अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड कराना है हमें कंप्यूटर को। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, तो उसे कन्वर्ट किया जाता है, और ये कौन करता है, दिस इज डन बाय अ ट्रांसलेटर एंड इट डिबग्स द प्रोग्राम, और ये डिबगिंग भी करता है, यानी कि उसमें से मिस्टेक्स भी फाइंड आउट करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाइलर एंड एन इंटरप्रेटर, यानी कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर एज गिवन। चलिए देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है, इट स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज एंड प्रोसेस द प्रोग्राम। तो कंपाइलर क्या करता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगाता है किसी भी प्रोग्राम को एनालाइज करने में, उसको प्रोसेस करने में। अब देखो ये ज्यादा टाइम लगाता है तो ये कम टाइम लगाएगा, यही तो होता है डिफरेंस में। तो इट डिपेंड्स लिटिल टाइम टू एनालाइज एंड प्रोसेस द प्रोग्राम। इट ट्रांसलेट प्रोग्राम एज अ होल, यानी कि जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एक बारी में ही ट्रांसलेशन करता है, जबकि ये एक स्टेटमेंट को एक टाइम पे ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर को मेमोरी ज्यादा चाहिए होगी और इंटरप्रेटर को मेमोरी कम चाहिए होगी, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। अब देखिए एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में तो हमें देखिए डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यहाँ पर हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज बता दे रहा हूँ और एक डिसएडवांटेज बता दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, मशीन लेवल लैंग्वेज से डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवांटेज क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के। दिस लैंग्वेज इज इजी टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली, हमें पता है ये इजी टू यूज होता है और यूजर फ्रेंडली होता है। दिस लैंग्वेज यूज इंग्लिश लैंग्वेज which can be understood by general humans, क्योंकि HLL क्या करता है, इंग्लिश सिंबल्स को यूज करता है, तो आसानी से ह्यूमंस इसको समझ सकते हैं। अब लेकिन HLL की एक डिसएडवांटेज क्या है,
it needs a compiler or interpreter to convert its code into machinery code. यानी कि जो भी हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो सीधा सीधा कंप्यूटर नहीं समझ पाता, उसके लिए हमें पहले कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए, तब जाके वो समझेगा. So this is how we have completed our chapter 2, which is about the computer languages, and I am hoping that you have understood this. And if you have any doubt, you can contact to me now. Done your homework in your computer register and send it to me. Until then, take care. Bye bye.